Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 3rd May. The session will be quite interesting students. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. In this video we will be talking about cabinet approvals. Then we will be talking about Maharashtra state that has approved the India's first shipbuilding, repair and recycling policy for 2025. Then we will be talking about CGHS beneficiaries. They will be receiving faster service now under a new digital platform. Next thing we will be talking about India's coastline, right, which has been recently revised and now it has been updated using a new methodology, right? So all these things and many more will be discussed in this video, students. Stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs. In this we are talking about cabinet approvals on 30th of April. Union cabinet, it is chaired by Prime Minister Narendra Modi and certain approvals has been approved. First is CCA Cabinet Committee on Political Affairs has approved to include caste enumeration in the upcoming census. That means the caste census will be added into the upcoming census, right? With this, some of the states in India conducted surveys which lacked transparency and intent, resulted in this step to include the caste census in the upcoming surveys. Then this is first thing. Second thing is the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved FRP, right, and it is of the sugarcane for the sugarcane season for 25-26, that is from October to September, at 355 rupees per quintal, right? Take a note of this. Then third thing, remember CCEA, that is Cabinet Committee on Economic Affairs, that is chaired by Prime Minister Narendra Modi, has also proposed for the development, maintenance and management of the green high speed corridor along with the National Highway 6, right? So these are some of the approvals. Take a note of this, right? Next thing, remember Maharashtra state has approved India's first shipbuilding, repair and recycling facility. Take a note of this. This is very important, students, right? What this will do is this will enhance the shipbuilding in India. Not just shipbuilding but also the repair and their recycling policy will be also taking place here. On Maharashtra state, it became the first state in India to introduce a dedicated policy in the maritime manufacturing sector. This policy focuses on transforming Maharashtra into a maritime hub through investment of 6,600 crore rupees by 2030 with a target of generating 40,000 jobs. Correct. If we talk about here financial incentive, here the capital subsidy of 15% of the total project cost will be provided and up to 1 crore rupees per project for skill development and up to 25 crore rupees for research and development will also be allocated here. Next is, and one more thing, as we are talking about Maharashtra is transforming into a manufacturing maritime hub now, so this will be attracting an investment of 6,600 crore by 2030, that is aimed at generating 40,000. Then by 2047, 18,000 crore rupees been invested here and 3.3 lakh crore jobs or 3.3 lakh jobs will be generated in the maritime sector by 2047. Moving on, next is Ministry of Health and Family Welfare has launched a new digital platform and a CGHS beneficiaries to receive the faster services, right? That means we will be receiving faster services now, for which a new digital platform has been launched, and it is Ministry of Health and Family Welfare that has launched this new digital platform, that is CGHS beneficiaries to receive here faster services. Correct. Under this CGHS, that is your central government health scheme, they will be receiving better services here. Correct. Take a note of this. And the previous websites are also there. Correct. They were officially deactivated and a new website
CGHS MOHFW, that is Ministry of Health and Family Welfare .gov.in has been launched. This is the new portal. Right. Also, under this upgraded version, the ministry has introduced the PAN account number based identification of beneficiaries. Moving on, here you can see this is the new portal, and this will be based on the PAN based identification of the beneficiaries. Next, India's coastline length revised to 11,098 km following an updated way of calculating it, right? That is updated methodology. Correct. Earlier the figure was, we can say this was Survey of India, right? And they have determined this coastline, correct? And since 1970, the coastline was recorded at 7,516 kilometer, right? And we have seen almost 50% jump from this, and now India's coastline length was officially updated to 11,098 kilometer, increasing by almost 3,537 kilometer, right? That is 50%. According to this updated version measurements, Gujarat has the longest coastline among the states, while Goa has the shortest, and among the union territories, Andaman and Nicobar has the longest, and Puducherry has the shortest here. Correct. Next is MHA, that is Ministry of Home Affairs, constituted a high-level committee under the Union Minister Amit Shah for national disaster management. Say for example, there is a national disaster in coming time, right? And in order to prepare for that, in order to be ready for that, and to develop standard operating procedures during that time, that how we will be reacting, this high level committee will be working, and it is Ministry of Home Affairs that has constituted this high level committee under Amit Shah for national disaster management. Right, what this will do is this will enhance India's resilience against both natural and man-made disaster, that includes your flood, earthquakes, pandemics, industrial accidents, and many more. Next is Telangana Governor Jishnu Dev Verma inaugurated world's first energy transition garden, and it has been inaugurated where? In Hyderabad, Telangana. This initiative, it has been developed in collaboration with Ministry of Culture and was a part of the 125th anniversary celebration of Pujya Babuji Maharaj, that is the founder of Sahaj Marg meditation system. This garden that we are talking about, world's first energy transmission garden, it comprises of 40 species, that includes your medicinal trees, neem, red sandalwood, tulsi, tropical almond, and many more. Correct. So this is, and who is he? Jishnu Dev Verma, the Telangana's governor, inaugurated this world's first energy transmission garden. If we talk about Telangana, who is the chief minister? A. Revant Reddy. Governor Jishnu Dev Verma, and capital is Hyderabad. And Manjira Bird Sanctuary is also located in Telangana. Next is India has conducted the first human gene therapy trial of hemophilia, right? Hemophilia. I repeat, India has achieved a significant milestone in medical science by conducting the first human gene therapy trial for hemophilia, which was conducted through a collaboration between Bengaluru, Karnataka based company and BRIC, that is BRIC Instem, right? So they carried out this test. Moving on. Next is international affairs. UNESCO has added 16 new global geoparks, and North Korea and Saudi Arabia has featured on this list. So here you can see UNESCO's Global Geoparks Council, right? They have recently added 16 new sites across 11 countries to their global geopark network. Let me show you some. These are the new sites that has been added here recently. These are from various different countries, and they are added here, right? And basically each site, they go a revalidation process after every few years, right? That whether they should be kept on including in this or not, because it takes a lot of efforts, takes a lot of conservation to be in this position. Next is Forbes India W Power 2025. W Power is your women power, right? So Forbes India Women Power 2025 list was released, and in this list, Dr. Gopi, Geeta Gopinath, Manu Bakar, Payal Kapadia, they were featured among the 20 Indians of the top self-made women list. Correct? Take a note of this.
And here 20 exceptional self-made women who have demonstrated leadership, innovation, resilience across various sectors that includes business, finance, sports, entertainment, public service were included in this list. This list was first launched in 2017 that aims to spotlight women who have carved their path into success, serving as an inspiration for future generation. If we talk about Forbes India, who is the editor? Suveen Sinha. Where is the headquarter? Mumbai, Maharashtra. Next is SRFTI's film A Doll Made Up of Clay makes its entry to Cannes 2025. Take a note of this, students. Film has been selected for the prestigious La Cinef section, which showcases works by school students across the world. This is a 23-minute experimental film. Next, UN's Armed Food and Agriculture Organization has launched Aim for Nature initiative that will boost the global ecosystem restoration monitoring. I repeat, Rome, Italy-based Food and Agriculture Organization, that is an arm of United Nations, has launched this Aim for Nature initiative that is accelerating innovative monitoring for nature restoration. This will enhance global monitoring of ecosystem restoration across forest, wetlands, grasslands, marine ecosystems, and degraded farmlands. Next is banking and finance. SBI has signed a memorandum of understanding with LPAI. LPAI is your Land Ports Authority of India. This will enhance the banking services for the border trade. That means if we are carrying out border trade, then here financing will be provided by State Bank of India to carry out that trade. Here the banking services will be expanding, employees benefit will be receiving better salary packages, better insurance and better incentives. Then infrastructure development will be there, and also forex management will also be provided here. If we talk about Land Sports Authority of India, who is the chairperson here? Aditya Mishra, headquartered in New Delhi, established in 2012. Next is Sadhan has signed an MOU with Bank of India to enhance the financial access for small, micro and women-led enterprises. I repeat, Sadhan, correct? Take a note of this. This is New Delhi-based self-regulatory organization appointed by RBI for microfinance and impact finance institutions, and they have signed an MOU with Mumbai, Maharashtra-based Bank of India that will enhance the financial access for small, medium and women-led enterprises, specifically in rural and semi-urban regions of India. Next is appointments and resignation. Former RAW chief Alok Joshi has been appointed as the chairman of NSAB. What is NSAB? National Security Advisory Board. So question can be asked that who has been appointed as the new chairman of this new National Security Advisory Board? Alok Joshi. Right? He is the former chief of research and analysis wing, and there he has been appointed as the new chairman. Right? Next is this committee. This has revamped the 7-member NSAB comprises distinguished retired officials from Indian military, police and diplomatic services. Next is books and authors, students. NAI has launched a book titled Ramanujan, Journey of a Great Mathematician. We know Ramanujan sir, a very famous mathematician, correct? And recently New Delhi based National Archives of India, in collaboration with New Delhi-based Vani Prakashan Group, they have launched the book Ramanujan, Journey of a Great Mathematician at Dr. Ambedkar International Center in New Delhi. This book has been authored by Arun Singhal and Devendra Kumar Sharma. Next is memoir titled The Undying Light by Gopalakrishnan Gandhi has been recently released. In April, renowned author and former civil servant Gopal Krishna Gandhi released his memoir titled The Undying Light, A Personal History of Independent India. This book was published by New Delhi-based LF Book Company that spans 624 pages, and it is available in English and in hardcover format. Next is important day, students. International Workers' Day observed on 1st of May. This day is observed to honor the contribution of the workers worldwide and to promote the workers' right. This day is also known as May Day, Antarrashtriya Shramak Divas or Kamgar Din. Next is World Tuna Day, students, observed on 2nd May. Tuna is a very famous dish or we can say fish that is eaten by a lot of people globally, right? So this World Tuna Day, this day is observed to create awareness about the tuna's ecological and economic importance, and every year it is observed on 2nd May. First time this day was observed in 2017.
So that's all for the day, students. There is one more state news left. That is your Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has launched E-Kalyan portal of ESOMSA. What is this? This is your empowerment of scheduled caste, other backward class, minorities and specially enabled. And this is the E-Kalyan portal that has been launched by Himachal Pradesh Chief Minister. This is a digital initiative that will simplify the application process for various social security pension schemes in the state. And the launch of this E-Kalyan portal, it reflects the Himachal Pradesh government's commitment to enhancing transparency and efficiency in delivering social welfare schemes. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, students, is our homework section. First question is, tell me the operation that was launched by India to help Myanmar when they were struck by earthquake. What was the name of that mission? Second question, tell me recently, name that taxi service that was launched by the government of India in order to compete with Ola and Uber. This taxi service was launched by the government of India. Then third, Manika Malai. It got the GI tag from which state? And then tell me which is the state with the highest number of GI tags. Fourth, tell me, name that port that became the first port to handle 200 million metric tons of cargo in FY25. Then fifth question, tell me recently our country's first vertical lift sea bridge, right? It was inaugurated where? So these are your 5 homework questions, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Which cricket team has won the 24-25 Ranji Trophy title by securing a first innings lead against the Kerala cricket team in the finals in Nagpur, Maharashtra? So it is Vidarbha, right? This Vidarbha cricket team has won the 24-25 Ranji Trophy. They defeated Kerala cricket team in the final, and this is the third time that Vidarbha has won the Ranji Trophy. Next, mention the Indian Grandmaster who won the title at the 38th Cannes International Open Chess Tournament held in France on 3rd of March 2025. So, Paneerselvam Inian, right? That is P. Inian has won the 38th Cannes International Open Chess Tournament by defeating V. Pranesh in the 9th and the final round held in Cannes, France. Next, in March, Indian table tennis champion Achanta Sharat Kamal has announced his retirement from professional table tennis. In which year did he was awarded with the Major Dhyanchand Khel Ratan Award? So he was honored with this award in 2022. He was honored with Arjuna Award in 2004, Padma Shri in 2019 and Khel Ratan Award in 2022. Next is Australian cricketer Dest has announced his retirement from ODI in March 2025. So Steven Smith has announced his retirement and he is an Australian cricketer. Next, which country will host the World Para Athletics Grand Prix 25 from 11 to 13th of March? It will be our India that will be hosting this World Para Athletics Grand Prix, and it will be held at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Next, in March, International Federation of Association of Football, that is FIFA, has banned which 2 countries from participating in the 2026 FIFA World Cup? So Russia and Congo was banned from participating in the FIFA World Cup. And this year it is in 2026 it will be the 23rd edition of the FIFA World Cup. Next, name the Bangladesh wicketkeeper and batsman who recently announced his retirement from one-day international cricket. So Mushfiqur Rahim, a veteran wicketkeeper batsman from Bangladesh, announced his retirement from one-day cricket. Next, name the Indian chess grandmaster who has won the title of International Chess Federation's World Junior Under-20 Championship 2025 that was held in Montenegro. So, Pranav Venkatesh, that is P. Venkatesh, right? Indian grandmaster from Bengaluru, Karnataka, has won the FIDE World Junior Under-20 Championship 2025 that was held in Petrovac, Montenegro. Next, Indian Grandmaster Arvind Chidambaram has clinched the Master Section title of which international tournament that was held in 2025? It was for Prague International Chess Festival. Next,
In March, India has won sixth edition of the Asian Women's Kabaddi Championship by defeating which country? By defeating Iran in the finals by 32-25. Next, identify the Bangladeshi cricketer who announced his retirement from international cricket on 12th of March. Who is that international? Who is that Bangladeshi cricketer? So, Muhammadullah Riyad. Next, who won the 2025 season opening Australian Grand Prix held at the Alberta Park Circuit in Melbourne, Australia on 16th of March? So who won the 2025 season opening here? Lando Norris. Lando Norris, he drives for McLaren, right? And he has won the Australian Grand Prix here. Next, in March, Indian Masters cricket team has won the inaugural International Masters League 25 in the final held in Raipur by defeating Dash Masters cricket team. So they defeated West Indies Masters cricket team. So Indian Master cricket team has won this inaugural edition of the International Masters League title. Next is India tapped the medal tally by clinching dash total medals at the 2025 World Para Athletics Grand Prix held at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. So India has topped the medal tally by clinching 134 total medals at the World Para Athletics Grand Prix held at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Next, India bagged a total of 33 medals at the 12th edition of Special Olympics World Winter Games held from 8 to 15th of March. Question asked is which country hosted the event? This event was hosted by Italy. Next, identify the women's cricket team that won the Women's Premier League 25 title in the final held in Mumbai, Maharashtra in March 2025. It is Mumbai Indians. Right, identify the women's cricket team. It is Mumbai Indians team that has won the Women's Premier League title for 2025. Next, mention the mascot unveiled by the Union Minister of Youth Affairs and Sport, Dr. Mansukh Mandviya, for the second Khelo India Para Games that will be scheduled to held in New Delhi. Right, so it is Ujwala is the mascot here. Next, Oscar Jack Piastri has won the first Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in March. Which brand he was driving for? So Oscar Piastri, he drives for McLaren. Lando Norris drives for McLaren, right? For Red Bull, who drives for Max Verstappen, right? George Russell, he drives for Ferrari. He drives for Mercedes. Next, which country won the second edition of the both men's and women's Kabaddi World Cup held in UK? So it is our country India that has won the second edition of both men's and women's Kabaddi World Cup. Next, identify the Indian gymnast who has won a bronze medal in the vault final at the FIG World Cup 2025 held in Turkey. So Pranati Nayak has won the bronze medal here at the vault final. She's a 29-year-old individual woman. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 3 मई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स, एंड हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा इंडिया का पहला शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रिसाइकलिंग पॉलिसी को लॉन्च किया गया 2025 के लिए। देन हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिससे CGHS बेनिफिशियरीज को बेटर सर्विस मिलेंगी, फास्टर सर्विस मिलेंगी। एंड इंडिया के द्वारा जो इंडिया की कॉस्ट लाइन का डाटा होता था उसको रिवाइज किया गया है। एंड ऑलमोस्ट जो प्रीवियस गाइडलाइंस थी, प्रीवियस डाटा था हमारे पास 7,000 का, कि हमारी 7,000 के करीब हमारी कोस्ट लाइन है, वो बढ़कर अब 11,000 हो गई है। ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है प्रीवियस के हिसाब से। ये सभी चीज़ें एंड मैनी मोर्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes.
It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। कैबिनेट अप्रूवल्स हम 30 अप्रैल की बात करेंगे। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इन्होंने कास्ट इन्यूमरेशन को ऐड किया अपकमिंग सेंसस में, मतलब कास्ट सेंसस भी यहाँ कराया जाएगा कि कौन से कितने लोग कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड उसको आने वाले सेंसस में ऐड किया जाएगा। राइट, इससे होगा क्या, बेसिकली एक प्रॉपर डाटा मिल सकेगा। राइट, बेटर सर्विसेज लोगों तक पहुँच सकेगी। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने अप्रूव किया FRP फॉर शुगर केन 2025-26 के अक्टूबर से सितंबर मंथ के लिए एंड ये 355 रुपये पर क्विंटल यहाँ पे रखा गया है। इसी के अलावा हम बात करेंगे अभी रिसेंटली NH6 इस नेशनल हाईवे को रिसेंटली यहाँ पे इसके डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए ऑफ ग्रीन हाई स्पीड कॉरिडोर अलोंग द NH06 ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। करेक्ट, प्रपोजल डाला गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे 3 मार्क करके चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स महाराष्ट्र। इन्होंने अप्रूव किया इंडिया का पहला शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी को। देखो इससे होगा क्या, एक तो इन हाउस हो जाएगा हमारा सब कुछ कि हम इन हाउस ही मतलब इंडिया के अंडर ही शिप बिल्डिंग कर सकेंगे। राइट, जो कि हम कर रहे हैं अभी, उसकी रिपेयर भी हम यहीं करेंगे, हम उसकी रिसाइकलिंग भी यहीं करते हुए दिखेंगे। इससे होगा क्या, इससे जॉब्स बहुत ज़्यादा जनरेट होती हुई दिखेंगी। राइट, एंड स्किलिंग यहाँ पे लोगों की होगी, स्किल्स यहाँ पे लोग अर्न कर पाएंगे इस सेक्टर में। तो बेसिकली मैरिटाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने का यहाँ पे काम किया गया एंड मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसी के अंडर जो कैपिटल सब्सिडी है 15% तक की दी जाएगी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड स्किलिंग के लिए 1 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे एंड 25 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। इसी के अलावा 6,600 करोड़ रुपए 2030 तक इन्वेस्ट करने की बात की गई, जिसके अंदर 40,000 जॉब्स यहाँ जनरेट करने का काम किया जाएगा, जो कि बढ़कर 18,000 हो जाएगा 2047 तक एंड 3.3 लाख जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होती हुई हमें दिखेंगी। इसके बाद आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने लॉन्च किया नया डिजिटल प्लेटफॉर्म CGHS बेनिफिशरीज टू रिसीव फास्टर सर्विसेज, बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इनकी पहले सरकार की 2 वेबसाइट्स होती थी, राइट, उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है एंड अब जो वेबसाइट रहेगी वो है CGHS.ministryofhealthandfamilyWelfare.gov.in। राइट, एंड यहाँ पे जो अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है पेन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर द बेनिफिशियरीज, राइट, फॉर ऑटोमेटेड पेमेंट वेरिफिकेशन, फुल्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन वर्कफ्लोज इन सभी के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है अब वो 11,098 किलोमीटर की है। अपडेट जो नया मेथडोलॉजी यूज़ की गई है कैलकुलेट करने के लिए, इससे पहले थी 7,516 किलोमीटर की, जिसमें अभी हमें 50% का यहाँ पे इजाफा होता हुआ दिखा है एंड हमारी जो अब कोस्ट लाइन बन गई है वो है 11,098 किलोमीटर की। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द न्यू रिवाइज्ड हमारी नई कोस्ट लाइन की लेंथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोस्ट लाइन बढ़ गई, इट्स जस्ट दैट जो कि हमारी पहली कैलकुलेशन थी वो हमारी कुछ उसमें मेथडोलॉजी में चेंज किया गया है एंड अब हमारी इतनी कोस्ट लाइन बनती हुई दिखी है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस स्टेट की आ जाती है, गुजरात की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, शॉर्टेस्ट गोवा की है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे ज़्यादा है एंड पुडुचेरी की सबसे कम देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स। इनके द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये हाई लेवल की कमेटी रहेगी अंडर अमित शाह। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कमेटी रहेगी कि बोथ मैन मेड एंड नेचुरल कोई डिजास्टर आ जाता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, क्या रूल्स ऐसे टाइम पे हमें फॉलो करने हैं। राइट, उनके लिए ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई है कि हम पहले से प्रिपेयर रह सकें। नेक्स्ट, तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन। कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, ये कहाँ रहेगा, कान्हा शांति वनम इन हैदराबाद तेलंगाना। इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पूज्य बाबूजी महाराज, जो कि फाउंडर हैं सहज मार्ग मेडिटेशन सिस्टम के। इस पार्क के अंदर वर्ल्ड के पहले एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन के अंदर 40 से भी ज़्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी मेडिसिनल ट्रीज की, नीम, रेड सैंडलवुड, तुलसी, आमंड एंड इन मैनी मोर।
कमिंग देन अगर हम तेलंगाना स्टेट की बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, ए रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन रहेंगे यहाँ पे, जिष्णुदेव वर्मा। कैपिटल हैदराबाद। एंड मंजीरा बर्ड सेंचुरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, देन इंडिया ने कंडक्ट करा पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमियोफीलिया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, अभी इंडिया के द्वारा ये करा गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन इसका डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। यूनेस्को ने अभी 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को ऐड किया, जिसमें से नॉर्थ कोरिया के भी जियो पार्क्स ऐड किए गए हैं एंड सऊदी अरेबिया के भी जियो पार्क्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, राइट। 16 नए जियो पार्क्स हैं जो कि 11 नई कंट्री से ऐड किए गए हैं। इसमें से आप कुछ देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे देखें तो एज ऑफ नाउ देयर आर 229 जियो पार्क्स आउट ऑफ 50 कंट्रीज, जिसमें से आप ये वो कुछ देख सकते हैं जियो पार्क्स एंड मैनी मोर यहाँ पे रहेंगे जो अभी ऐड किए गए। इसके बाद आ जाते हैं फोर्ब्स इंडिया वीमेन पावर 2025 की ये लिस्ट रिलीज की गई है, जो कि बताती है कि वीमेंस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सेल्फ मेड वीमेंस का कंट्रीब्यूशन इन लीडरशिप, इनोवेशन, रेजिलियंस वर्क सेक्टर्स जैसे बिजनेस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पब्लिक सर्विसेज के लिए, राइट। एंड यहाँ पे इसमें अगर हम देखें डॉक्टर गीता गोपीनाथ, मनु बाकर, पायल कपाड़िया, दे आर अमंग द 20 इंडियंस टॉप सेल्फ मेड वीमेन लिस्ट। ये जो इनिशिएटिव है डब्ल्यू पावर का, फॉर्ब्स का डब्ल्यू पावर इनिशिएटिव 2017 में लॉन्च किया गया था पहली बार। एंड जो वीमेन सेल्फ मेड है, जिन्होंने अपना पाथ खुद यहाँ पे कार्व किया है टू सक्सेस, उनको ऑनर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अगर मैं एडिटर की बात करूँ फॉर्ब्स की कौन रहेंगी, वो भी एक वीमेन है, सुवीन सिन्हा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं SRFTI की फिल्म अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। इसने अभी एंट्री की है केन्स 2025 में, राइट। एंड ये फिल्म बेसिकली एक वर्क रहेगा स्कूल स्टूडेंट्स का अक्रॉस द वर्ल्ड, ला सिनेफ सेक्शन का, राइट। एंड ये जो फिल्म है ये एक शॉर्ट फिल्म रहेगी, 23 मिनट की ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। इसके बाद आ जाते हैं यूएन का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने लॉन्च किया एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। ये क्या है, बेसिकली ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को बूस्ट देने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, राइट। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि कैसे हम जो फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर कर सकें। उसके लिए जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, या फिर वेटलैंड्स के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए, मरीन इकोसिस्टम्स के लिए, डिग्रेडेड फार्मलैंड्स के लिए, उनके रिस्टोरेशन के लिए जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, राइट, उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके एंड उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक MOU साइन किया गया है लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, राइट, बॉर्डर एरियाज पे, करेक्ट, जो बॉर्डर ट्रेड होता है बॉर्डर एरियाज पे, या फिर हम बोलें जो बॉर्डर ट्रेड होता है उसमें जो बैंकिंग सर्विसेज दी जाती है, राइट, उनको एनहेंस करने के लिए ये MOU हमें साइन होता हुआ दिखा SBI एंड लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। इसके साथ क्या होगा, बेटर सर्विसेज मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट होंगे, यहाँ पे जो सैलरी है वो बेटर आएगी, ज़्यादा आएगी, ज़्यादा इंसेंटिव्स हमें देखने को मिलेंगे, करेक्ट। फिर इसी से यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर होता हुआ दिखेगा, करेक्ट, एज वेल एज फॉरेक्स मैनेजमेंट यहाँ पर हमें होता हुआ दिखेगा। अगर मैं लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूँ तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, आदित्य मिश्रा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रहेगा एंड 2012 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स साधन, राइट। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है SRO, जिसको RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया है फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि फाइनेंशियल एक्सेस को फॉर स्मॉल, माइक्रो एंड वीमेन लेड एंटरप्राइज बढ़ावा दिया जा सके, स्पेसिफिकली कहाँ पर, रूरल एरियाज में एंड सेमी अर्बन रीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। इसके अंडर होगा क्या, एंटरप्राइज फाइनेंसिंग के ऊपर काम किया जाएगा, लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, क्लाइमेट एंड ग्रीन फाइनेंसिस के ऊपर काम किया जाएगा, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश के ऊपर काम किया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर यहाँ पे हमें काम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। फॉर्मर रॉ ये क्या है, RAW बेसिकली ये है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ आलोक जोशी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड NSAB क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड जो ये रिवैम्प्ड NSAB है ये 7 मेंबर की रहेगी, करेक्ट। एंड डिप्लोमेटिक सर्विसेज, इंडिया की मिलिट्री पुलिस, राइट, इंडिया की मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे ऑफिशियल जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं वो अपनी सर्विस देते हुए देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स बुक्स एंड ऑथर्स पर। NAI
राइट। इन्होंने बुक एक लॉन्च करी जो है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। NAI क्या है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने कोलैबोरेट किया वाणी प्रकाशन ग्रुप के साथ ताकि ये रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन इसको लॉन्च किया जा सके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। एंड हम जानते हैं स्टूडेंट्स, रामानुजन जी ये काफ़ी फेमस मैथमेटिशियंस थे फ्रॉम इंडिया, राइट। एंड इनके ऊपर ये बुक रिलीज की गई है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। आई रिपीट, अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार सिन्हा, इनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोयर टाइटल द अनडाइंग लाइट बाय गोपाल कृष्णा गांधी हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड। इस बुक को न्यू दिल्ली बेस्ड LF बुक कंपनी के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। 624 इस बुक में पेजेस रहेंगे एंड ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हार्डकोर फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। एंड इस मेमोयर में बेसिकली महात्मा गांधी जी के असैसिन के ऊपर बात की गई, राइट, उनके पर्सनल रिकलेक्शन के ऊपर बात की गई, करेक्ट। एंड जिन्होंने ये जो इनका महात्मा गांधी का असैसिनेशन था, राइट, उसको विटनेस किया गया, उनके ऊपर यहाँ पे बात की गई, क्या स्टोरी है उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई, राइट। तो ये बुक है द अनडाइंग लाइट। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। इंटरनेशनल वर्कर्स डे स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड टू द वर्कर्स राइट या फिर उनकी लाइफ में ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी को हम मे डे के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से जानते हैं, या फिर कामगार दिन के लिए जानते हैं। इस डे को पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट टाइम इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 1886 में, राइट, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। देन इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं ट्यूना फिश के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। ट्यूना फिश एक ग्लोबली ईटिंग या फिर ग्लोबली बहुत ये फिश खाई जाती है एज अ सी फूड, राइट। एंड इससे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसी भी एरिया की, राइट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस जो इनके लिए फॉलो की जाती हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो एक ही पैच से बार बार फिशिंग करते रहेंगे तो उस एरिया में ये ट्यूना की स्पीशीज खत्म होती हुई दिखेंगी, जो कि काफ़ी हार्मफुल रहता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, राइट। तो रेगुलेटेड फिशिंग होनी चाहिए, तरीके से फिशिंग होनी चाहिए, ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे। एंड पहली बार इस डे को 2017 में ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा ई कल्याण पोर्टल को लॉन्च किया गया ऑफ ESO MSA। ये क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड स्पेशल एबल्ड, राइट। तो इनके लिए यहाँ पे ये ई कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया कि आप खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। जिससे क्या होगा, इनको बेटर सर्विसेज मिलेंगी, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लाती हुई दिखेंगी, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी कि जो भी सोशल सर्विस वेलफेयर स्कीम्स हैं, राइट, वो प्रॉपर तरीके से एंड ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे डिलीवर होती हुई हमें दिख रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट, इन मार्च डैश वॉज नेम्ड द ENY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो वो कौन है? नितिन कामत यहाँ पे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 रहे। नेक्स्ट, किन्होंने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को रिसीव किया, राइट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के लिए। तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसीव किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स इन्होंने टॉप किया एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया वैल्यूएबल रैंकिंग 2025 जो रिलीज की गई है YouGov के द्वारा इन मार्च 2025। तो वो कौन सा ब्रांड रहेगा? अमेजॉन। वर्ल्ड में किसने टॉप किया, कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, किन्होंने रिसीव किया 2026 का द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज बाय यूनेस्को इन मार्च 2025। तो वो कौन है? सुमन चक्रवर्ती। Next, which of the following insurance companies was not ranked among the top 5 strongest insurance brands globally as per the Brand Finance Instrument 100 2025 की रिपोर्ट इन मार्च 2025? तो वो कौन सा ब्रांड है? SBI का लाइफ इंश्योरेंस ये इस लिस्ट में नहीं था। PZU पोलैंड फर्स्ट पे, चाइना इंश्योरेंस सेकंड पे, NRMA फोर्थ पे, राइट। तो थर्ड पे कौन सा आ जाता है? वो है हमारा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मार्क करेंगे इसको। इसके बाद आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। यह भी 2025 मार्च में अवार्ड किया गया। किनको? डॉक्टर एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सूतॉन को। किस लिए? फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे जो कि 8 मार्च को था, किन्होंने अनाउंस किया, किनको अनाउंस किया गया एज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रिसीव किया रामसर वीमेन चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड वेटलैंड अवार्ड्स फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पे इस अवार्ड से? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट, 2025 मार्च में आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट जिनको रिसीव किया गया, जिसने रिसीव किया अपना 8th कॉन्जिक्यूटिव एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड को फॉर बेस्ट एयरपोर्ट फॉर ओवर
40 million passengers in Asia Pacific region. तो आइडेंटिफाई दैट इंडियन एयरपोर्ट, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र में. नेक्स्ट, द लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन सा है जिसने अभी 2 गोल्ड अवार्ड्स को जीता, स्कॉच अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए. वो कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो है मुथूट माइक्रोफिन. कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए एंड आपका BFSI अवार्ड, ये 2 अवार्ड जीते गए. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि इंट्रोड्यूस किया गया RBI के द्वारा, जिसने रिसीव किया ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस ऑफ UK. तो वो 2 इनिशिएटिव्स कौन से हैं, सारथी एंड प्रभा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द EV स्टार्टअप जिसने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल को, जिसका नेम रहेगा वीर. पूछा जा रहा है उस स्टार्टअप का नाम बताओ. वो स्टार्टअप है प्रवायक डायनामिक्स. ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रहेगा. एंड अलग क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है, वीर. नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी जिनको ऑनर किया गया 2025 के हॉलबर्ग प्राइज से फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट के लिए. तो वो कौन है, वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक. नेक्स्ट, एक और चीज, इनको 2013 में पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जो कि मार्च 2025 में हुई दिल्ली में, 27 जर्नलिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया अक्रॉस 20 डिफरेंट कैटेगरीज. हाउ मच वाज द कैश प्राइज टू ईच रेसिपिएंट, तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज था हर रेसिपिएंट के लिए. नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट या फिर विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट जो कि सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द सनमार्क ग्रुप एंड द ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर साउदर्न इंडिया, इनको रिसीव हुआ या फिर इनको सम्मानित किया गया नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेननबॉर्ग के साथ फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क इन 2025. तो किनको सम्मानित किया गया है इससे, वो है विजय शंकर. ये चेयरमैन हैं ऑफ सनमार्क ग्रुप एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काउंसलर सर्विसेज के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया. Next, who was honored with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Service through Cultural Leadership at United Kingdom Parliament in March 2025. तो वो हैं वेटरन एक्टर के चिरंजीवी, काफ़ी फेमस वेटरन एक्टर हैं साउथ इंडिया से एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. ये किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते हैं. इसके बाद आ जाते हैं द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी, इन्होंने अप्रूव किया सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस फॉर साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज ड्यूरिंग द मीटिंग जो रविंद्र भवन में हुई न्यू दिल्ली में. पूछा जा रहा है इसमें से कौन से वो ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेज है जो मैच नहीं कर रहे हैं. बाकी सभी सही हैं, बस मलयालम का केशकर ठाकुर नहीं है. मलयालम लैंग्वेज के ट्रांसलेटर कौन रहेंगे, KV कुमारन. नेक्स्ट आ जाते हैं डैश अलॉन्ग विद कॉर्डोबा फोर्टल्जा एंड, तो 3 कंट्री हो गई है, वो कौन कौन सी हैं, वो है ग्रेटर मैनचेस्टर, कॉर्डोबा एंड फोर्टल्जा. इनको रिकॉग्नाइज किया गया 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट के द्वारा इन पेरिस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन रिड्यूसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, करेक्ट, ऐसी डिजीज को कैंसर हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो गई एंड इंजरी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करने के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं द रिनोन पोएट एंड नॉवलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन मार्च फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू विच लिटरेचर. तो कौन से लिटरेचर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए. टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट. एंड एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि विद दिस अवार्ड ये वो पहले राइटर बन गए हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड 12वें हिंदी ऑथर जिनको सम्मानित किया गया. नेक्स्ट, किस स्टेट के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में इंडिया ने अवार्ड किया गया एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024 के साथ बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर इन मार्च 2025. तो किस स्टेट का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बोर्ड को सम्मानित किया गया, तमिलनाडु के. किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया प्रोविजनल रिकॉग्निशन फ्रॉम IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज द गवर्निंग बॉडी फॉर ग्लोबल बॉक्सिंग इन Feb 2025. तो वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा ये रिकॉग्निशन मिला एंड अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें तो फरवरी 2023 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, करेक्ट. अप्रैल 2023 में इसको बनाया गया था, वर्ल्ड बॉक्सिंग को फाउंड किया गया था.
नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने अभी 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीत ली है? तो वो है विदर्भा के द्वारा। विदर्भा के द्वारा थर्ड टाइम ये रणजी ट्रॉफी जीती गई। इन्होंने केरला क्रिकेट टीम को फाइनल में हराया, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी जीता द टाइटल एट द 38 केन्स इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2025 का, जो कि फ्रांस में हुआ था। तो पूछा जा रहा है उन इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, वो है पी इनियन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली मार्च में इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरद कमल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस। पूछा जा रहा है किस साल में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2022 में। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड से तो 2004 में, पद्माश्री से 2019 में, एंड देन खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डैश, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ओडीआई। तो स्टीवन स्मिथ, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को फ्रॉम 11 से 13 मार्च? तो वो है हमारी इंडिया। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फीफा, इन्होंने बैन कर दी 2 कंट्रीज़ को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये आपका 23वां एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का, एंड इसमें रशिया एंड कॉन्गो को बैन कर दिया गया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट, नेम द बांग्लादेश विकेट कीपर एंड बैट्समैन जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस की हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। तो वो कौन है? वो है मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइड वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि मोंटेग्रो में हुई थी। राइट, तो कौन है वो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? वो है प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने मास्टर सेक्शन जीता ऑफ विच इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट मार्च 2025 में? तो प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के दौरान इन्होंने यहाँ पे मास्टर सेक्शंस जीता है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी जीता 6ठा एडिशन ऑफ एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप, किन को हरा के फाइनल्स में? तो ईरान को फाइनल्स में हरा के जीता है। 32-25 से यहाँ पे इंडिया ने जीता है इसको। राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बांग्लादेशी क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अभी रिसेंटली। तो वो कौन है बांग्लादेशी क्रिकेटर? वो है महमूदुल्लाह रियाद। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि एल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में? तो वो है लैंडो नॉरिस। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम, इन्होंने इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टाइटल्स को जीत लिया, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। किसको हरा के फाइनल्स में? वेस्ट इंडीज मास्टर क्रिकेट टीम को फाइनल में हरा के। राइट, ये पहला एडिशन था इसका, एंड इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम ने इसको जीत लिया है। जो मोस्टली रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे खेलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली में बाय क्लिंचिंग इतने मेडल्स एट द 2025 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। तो इंडिया ने 134 मेडल से जीतकर यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। नेक्स्ट, इंडिया ने बैग किए 33 मेडल्स एट द 12वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में, जो कि 8 से 15 मार्च तक हुआ था। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट किया था इस इवेंट को? विच कंट्री होस्टेड दिस इवेंट? तो ये होस्ट किया गया था इटली के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम दैट वन द वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल इन द फाइनल हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इन मार्च 2026। तो आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम, तो वो कौन सी है? वो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने वीमेंस प्रीमियर लीग को यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर द सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा उस मैस्कॉट का? तो वो मैस्कॉट है उज्ज्वला। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है ऑस्कर पिएस्ट्री। राइट, ये एक F1 ड्राइवर है। इन्होंने पहला ग्रैंड प्रिक्स चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। पूछा जा रहा है किस ब्रांड के लिए ड्राइव करते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री? तो ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। लैंडो नॉरिस भी मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। जॉर्ज रसल आपके मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। राइट, एंड एक और चीज़ मैक्स वर्स्टेपन, ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने भी सेकेंड एडिशन ऑफ बोथ मेंस एंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप को जीता, जो कि यूके में हुआ था? तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे बोथ मेंस एंड वीमेंस वर्ल्ड कप को जीता गया। नेक्स्ट, उस इंडियन जिमनास्ट को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वर्ल्ड फाइनल, जो कि FIG वर्ल्ड कप 2025 टर्की में होता हुआ दिखा था। तो वो है प्रणीत नायक। ये 29 साल के ओलंपिक जिमनास्ट हैं। राइट, जिमनास्ट हैं प्रणति नायक। राइट, शी इज़ अ फीमेल, नॉट प्रणति। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द फाइनल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अर्जेंटीना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन।
First question is, tell me the operation that was launched by India to help Myanmar when they were struck by earthquake. What was the name of that mission? Second question, tell me recently, name that taxi service that was launched by the government of India in order to compete with Ola and Uber. This taxi service was launched by the government of India. Then third, Manika Malai. It got the GI tag from which state? And then tell me which is the state with the highest number of GI tags. Fourth, tell me, name that port that became the first port to handle 200 million metric tons of cargo in FY25. Then fifth question, tell me recently our country's first vertical lift sea bridge, right? It was inaugurated where? So these are your 5 homework questions, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.